Assalamu alaikum friends. Hello everyone. So, let's discuss upon a very important standard that is AS11, the effects of changes in foreign exchange rates. As the name suggests, you can understand that here we will talk about the foreign exchange differences arising on the foreign currency transaction. Now, as the world is moving towards globalization, each and every business reporting enterprises deals with numerous foreign exchange currency transactions, right? So there arises a difference in foreign exchange rates. So how to do the accounting of foreign exchange differences and the foreign exchange transactions will be discussed in this standard, right? So starting with the introduction, basically the standard deals with issues involved in for accounting for foreign currency transactions and foreign currency operations. So here we are talking about foreign currency first of all foreign currency, but what transactions and operations, these two are different part. Your transactions means entity is incurring this transaction, and operations means you have your business operations in the foreign country, right? Business operations in foreign country. Now, to decide which exchange rate to use and how to recognize the financial effects of changes in exchange rates in financial statements, right? Now, the standard should be we are discussing about the scope. The standard should be applied in accounting for transactions in foreign currencies, right? So first of all we will use this standard for accounting for transactions in foreign currencies. Thereafter, in translating financial statements of foreign operations, when we are translating the financial statements of our foreign operations, that we will use this standard. Thereafter, third, the statement also deals with accounting for foreign currency transactions in nature of forward exchange contracts. So here they say that foreign currency transactions are of three types. One, foreign currency transaction entered by entity. Other, foreign operations where you need to translate your financial statements. And third, forward exchange contracts, right? Thereafter, they say that this standard does not deal with some points. Here I say this is not important, but you have some glance over it. First, this standard does not specify the currency in which an enterprise presents its financial statements. They do not say anything about the currency, right? However, enterprise normally uses the currency of country in which it is domiciled. सी हियर उन्होंने बताया नहीं कि आपको कौन से करेंसी में रिपोर्टिंग करना है, राइट? लेकिन आप जनरली कोई भी कोई भी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज होगा, वो अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी कंट्री का जो करेंसी है, लोकल करेंसी, उसमें ही वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, राइट? और अगर वो कोई डिफरेंट करेंसी यूज़ कर रहा है तो इट मस्ट गिव द डिस्क्लोजर. तो जनरली जो आपका रिपोर्टिंग करेंसी होता है वो आपका लोकल करेंसी होता है. मान लो यू हैव अ बिजनेस इन इंडिया, you will disclose your financial statements in the reporting currency called INR, Indian rupees, right? So any other currency other than Indian rupee will be your foreign currency. So here standard does not talk anything about your reporting currency. Thereafter, deals with presentation. This standard also does not specify anything for presentation of cash flow statement in foreign currency and translation of cash flow statement for your foreign operations. जब आपका कोई foreign operation होता है, बार मान लो आपका foreign operation मतलब कि आपका कोई subsidiary है, branch है जो foreign country में है और वो वहाँ पे आपका business कर रहा है, तो उनके financial statements आप अपने में merge करवाते हो. At the year end you combine your financial statements. तब आप जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी करेंसी में ट्रांसलेट करते हो, तब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में आपकी कोई मदद ये AS11 नहीं कर सकता, राइट? देन it also does not deal with exchange difference arising from
currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest cost. If you have listened my lecture of AS16, I would say that this was an important topic which I discussed there, and I talked very much in detail, tried to make you conceptually clear for this concept. I said that there is a concept which deals with AS11 vis-a-vis AS16, right? So that topic was much more important in that standard. So this standard will not deal with that. So what was that, just recalling it, that when you have a borrowings from foreign country, right, when you have borrowed money from foreign country and you are paying interest, there arises foreign exchange difference on your repayment of principal liability. तो आपका जो प्रिंसिपल लायबिलिटी रिपेमेंट में फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ, वो आपके कितनी हद तक ऐसा है कि वो आपका AS16 में रिकॉग्नाइज होगा, और कितनी हद तक का है जो आप AS11 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करेंगे, वो हमने वहाँ पे देखा था, राइट। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो एक्सचेंज डिफरेंस जो इंटरेस्ट कॉस्ट के एडजस्टमेंट में जाएगा और वहाँ पे कैपिटलाइज होगा एज पर AS16, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। Thereafter, it does not deal with the restatement of enterprises' financial statements from its reporting currency into another currency for convenience of users accustomed to that currency। मतलब कोई यूज़र्स के कन्वीनियंस के लिए आप रिपोर्टिंग रीस्टेटमेंट करवा रहे हैं किसी और करेंसी में, तो इसके लिए भी ये स्टैंडर्ड डील नहीं कर रहा है, राइट। तो ये तो पूरा बेसिक आइडिया हुआ आपके स्टैंडर्ड का। देयरआफ्टर डेफिनेशंस, यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी डेफिनेशंस दी गई हुई है, हम थोड़ी सी झलक मार लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच वाला स्टैंडर्ड है, यहाँ पे थियोरेटिकल बेसिस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि यू ऑल स्टूडेंट्स डज नॉट गेट कन्फ्यूज और गेट नर्वस के मैम ने यहाँ पे मॉड्यूल का टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, यहाँ पे ये छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए मैं ये पूरा क्लियरली पढ़वा देती हूँ, लेकिन आप ये बात समझ लेना कि ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाला स्टैंडर्ड है, उसको बहुत कंसेप्चुअली समझना रहेगा, एंड यू नीड टू फोकस मच मोर इन दिस लेक्चर, राइट। नाउ, foreign currency transaction is a transaction which is denominated in or requires settlement in foreign currency, राइट। तो जो भी आपका सेटलमेंट होगा फॉरेन करेंसी में, या फिर आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट हो रहा है, उसको आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बोले, चाहे वो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर बोरोइंग और लैंडिंग ऑफ फंड्स है, राइट, या फिर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आपने एसेट वहाँ से ख़रीदा और या फिर एसेट वहाँ पे बेचा, या फिर कोई लायबिलिटी इनकर की और उसको सेटल किया, जो भी फॉरेन करेंसी में हुआ, उन सभी को हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। मार्क माई वर्ड्स, ये सभी डेफिनेशन बहुत आसान है और मतलब कि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाती चलूँगी। तो ये हुई आपकी ये फर्स्ट डेफिनेशन। नाउ सेकेंड, मॉनिटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ क्योंकि हम बेसिक स्टैंडर्ड पे डायरेक्ट पहुँचेंगे मेरे चार्ट से, तब हम पूरा ये समझते जाएंगे। फॉरेन ऑपरेशन वो भी वहाँ पे हम पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फॉरेन ऑपरेशन मैंने आपको बोला, कोई भी सब्सिडियरी है अपने रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, कोई ब्रांच है जो आपके एक्टिविटीज़ को फॉरेन कंट्री में कंडक्ट करवा रहा है, तो उसको बोला जाएगा फॉरेन ऑपरेशन, राइट। मैंने अभी आपको ये समझाया। अभी फॉरेन ऑपरेशन के भी दो टाइप्स हैं, उनका उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे हम समझेंगे। नाउ नेट इन्वेस्टमेंट इन नाउ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी हम आगे पढ़ते हैं, फॉरवर्ड रेट भी उसके साथ पढ़ेंगे। और फॉरेन करेंसी वो करेंसी है जो अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी है, राइट। तो यहाँ पे हम रिकॉग्निशन पे पहुँच गए हैं, तो एक बार हम हमारे चार्ट में आ जाते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
सो ये हमारा पूरा चार्ट रहेगा। सी आपको पूरा फ्लो देख लेने का है, राइट। इस तरह से हमारा चार्ट मूव होगा, बट मैं आपको समझाती जाती हूँ, राइट। नाउ एज 11 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, राइट। ये मैंने हेडिंग दे दिया, आगे पढ़ते हैं। दिस एज डील्स विथ हाउ टू कन्वर्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन इनटू रिपोर्टिंग करेंसी। हमने समझ लिया फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन हो गया, लेकिन हुआ है फॉरेन करेंसी में। रिपोर्टिंग करेंसी अलग है, उसको रिपोर्टिंग करेंसी में कैसे कन्वर्ट करना, और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है उसको कैसे अकाउंट फॉर करना, कौन से एक्सचेंज रेट यूज़ करना कन्वर्जन के लिए, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सो विच एक्सचेंज रेट टू यूज़ एंड हाउ टू रिकोगनाइज द फिनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, राइट। सो द स्टैंडर्ड स्कोप है स्टैंडर्ड का 3 चीज़ों के लिए, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, फॉरेन ऑपरेशंस एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा स्टैंडर्ड का स्कोप है, राइट। मैंने उसी को आगे ले लिया है। तो हमारा फर्स्ट स्कोप क्या है, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन करेंसीज एंटर्ड बाय एंटिटी। फिर ट्रांसलेटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस एंड अकाउंटिंग फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशंस में पढ़ा मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। पहले हम ये डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो मॉनेटरी आइटम्स क्या है, आर मनी हेल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ टू बी रिसीव्ड और पेड इन डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी। तो मॉनेटरी आइटम्स का मतलब ये है कि जो भी आपका एसेट एंड लायबिलिटीज़ है वो इन टर्म्स ऑफ मनी है। रिसीव आपको मनी रिसीव होगा उस एसेट के अगेंस्ट में, या फिर उस लायबिलिटी के अगेंस्ट में आपको मनी का पेमेंट होगा, तो उसको बोला जाएगा मॉनेटरी एसेट, राइट। तो इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स दैट इज़ बैंक है, राइट। ऐसा कोई भी कैश इक्विवेलेंट्स है। फिर एसेट्स जो है आपके रिसीवेबल इन टर्म्स ऑफ मनी दैट इज़ डेटर्स, राइट। फिर लायबिलिटीज पेएबल इन टर्म्स ऑफ मनी तो दैट इज़ क्रेडिटर्स। वो सभी यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो एसेट्स रिसीवेबल इन टर्म्स ऑफ मनी आप बोल सकते हैं डेटर्स, और लायबिलिटीज़ को आप बोल सकते हैं क्रेडिटर्स, राइट। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। बाकी कैश है, बैंक है, राइट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, राइट, जो रेडिली रियलाइजेबल होते हैं कैश में, इन सभी को हम मॉनेटरी एसेट बोलेंगे। Thereafter, non-monetary items. These are those items in which benefit is receivable in kinds, that is goods or service। मतलब कि ये वो है जिसके अगेंस्ट में आपको या तो गुड्स मिल रहा है या तो फिर कोई सर्विस मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल है प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। यहाँ पे फिर एडवांस गिवन टू सप्लायर्स, आपने सप्लायर को एडवांस दिया है तो आपको मिलेगा क्या, गुड्स। आपने प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है, मानो प्रीपेड रेंट दिया हुआ है तो आपको घर मिल रहा है उसके अगेंस्ट में यूज़ करने के लिए, आपको रेंटिंग सर्विस उससे मिल रही है, राइट। तो जो भी प्रीपेड एक्सपेंस है आपको उसके अगेंस्ट में कुछ मिल रहा है, राइट। तो ये जो हुआ वो एग्जाम्पल है नॉन मॉनेटरी आइटम्स का। तो ये उन दोनों के बीच में हुआ ये डिफरेंस। फिर हमने डेफिनेशन देखा रिपोर्टिंग करेंसी। जिस करेंसी में आप अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो उसको बोला जाएगा रिपोर्टिंग करेंसी। एंड जो भी और कोई भी करेंसी है रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा उन सभी करेंसीज को बोला जाएगा फॉरेन करेंसी। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा रिपोर्टिंग करेंसी बन जाएगा INR, इंडियन रूपी। एंड ऑल अदर, मान लो डॉलर है, पाउंड है, राइट, येन है, तो ये सभी आपके लिए फॉरेन करेंसी बन जाएंगे, राइट। तो दिस वाज समथिंग अबाउट अवर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स, राइट। अभी हम चलते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पे। मैंने वहाँ पे 2 डेफिनेशन अभी लीव कर दिया, अगर आपने देखा हो तो। यहाँ पे मैंने मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आपका कवर करवा लिया, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन मैंने कवर करवा लिया। फिर मैंने आपका मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स भी कवर करवा लिया, फॉरेन ऑपरेशन भी कवर करवा लिया। ये 2 चीज़ मैंने अभी छोड़ दी है, इसका भी रीज़न है, मैं आगे ले लूँगी, कवर कर लूँगी, राइट। और ये फॉरवर्ड एक्सचेंज वाली भी सभी मैंने छोड़ दी है दोनों।
ये भी आगे टॉपिक आएगा, उसके साथ साथ मैं लेती जाऊंगी। सो हम आगे बढ़ते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन के साथ। अ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन इन रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग टू द फॉरेन करेंसी अमाउंट द एक्सचेंज रेट बिटवीन रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इनिशियल रिकॉग्निशन तो आपको जो भी एक्सचेंज रेट है एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड करना होगा, राइट, कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का। फिर आप एवरेज रेट भी यूज़ कर सकते हैं। अभी एवरेज रेट के लिए उन्होंने एक बड़े ऐसा यहाँ पे पूरा अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है, ये आप मार्क कर लेना, मेरे से मार्किंग रह गया है थोड़ा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। एवरेज रेट को बोला क्या जाता है, राइट, इसका उसने पूरा डिटेल्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसको आप मार्क कर लेना, राइट। एवरेज रेट, एवरेज रेट को क्या बोला जाता है? सो अ रेट दैट अप्रोक्सीमेट्स द एक्चुअल रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑफन यूज्ड। जब आप कोई ऐसा एक्सपेंस है जो ड्यूरिंग द ईयर इनकर हो रहा है, इनकम है जो इवनली ड्यूरिंग द ईयर इनकर हो रही है, राइट, तो उन सभी को आप एवरेज रेट से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वो जनरली वो रेट होता है कि जो उस पीरियड के लिए होता है जो रिलायबल हो और सिग्निफिकेंटली उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे हो और पीरियड भी रिलायबल है, तो उस वो जो रेट कंप्यूट करी जाती है एवरेज, वो उसको एवरेज रेट बोला जाता है, राइट। वो पूरा ईयर का इवनली एक्सचेंज रेट का एक एवरेज होता है जहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, तो उसको बोला जाता है एवरेज रेट, राइट ना। अभी रिपोर्टिंग एट ईच बैलेंस शीट डेट हमने पहले पढ़ा, रिकॉग्निशन इनिशियल, फिर अभी एट ईच बैलेंस शीट डेट, राइट ना। ईच बैलेंस शीट डेट में दो बातें हैं, हम अभी बात कर रहे हैं पहले ही वाले ट्रांजेक्शन्स वाले ही, राइट ना। से मैं पूरा आसानी से पहले आपको चार्ट से समझा देती हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पे ले जाती हूँ क्योंकि आपके लिए वो आसान रहेगा, राइट। तो देखिए आप मेरे चार्ट में, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन करेंसीज एंटर्ड बाय एंटिटी, राइट। तो यहाँ पे एंटिटी खुद जाके फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन कर रहा है, एंटिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। मार्क माय वर्ड्स, आप लिख भी सकते हैं, एंटिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व in foreign currency transaction, ठीक है ना बच्चों। सो यहाँ पे एंटिटी खुद जाके ये फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एंटर कर रहा है, राइट। तो स्कोप का पहले वाला पार्ट है जहाँ पे ट्रांजेक्शन एंटिटी खुद एंटर कर रहा है, पहले ये समझ लेना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, राइट। फिर उसमें दो चीज़ें आती है, इनिशियल रिकॉग्निशन। तो पहले इनिशियल रिकॉग्निशन की मैंने वहीं पे आपको बात बताई, हमने इनिशियल रिकॉग्निशन वाला पैराग्राफ पढ़ लिया था, राइट। तो वहाँ पे था रेट एट द रेट ऑफ रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट, या फिर एवरेज रेट जहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस नहीं हो उस पीरियड के लिए, राइट। तो आपका जो भी रिपोर्टिंग पीरियड है उसका एवरेज एक्सचेंज रेट निकाल लो, लेकिन उस पीरियड के ड्यूरिंग कोई भी सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए, तब आप ये एवरेज रेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने इनिशियल रिकॉग्निशन तो वहाँ पे पढ़ लिया था, मैंने बैलेंस शीट डेट वाला छोड़ दिया और मैं चार्ट में आ गई। पहले मैं आपको आसानी से यहाँ पे समझा देती हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एट बैलेंस शीट डेट, राइट। तो ऑन बैलेंस शीट डेट आप कैसे अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को क्लासीफाई करवाएंगे। पहले हम बात करते हैं मॉनिटरी आइटम की। इफ़ यू कैन रिकॉल, मॉनिटरी आइटम कौन से थे, वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो मॉनिटरी टर्म्स में फिक्स डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी में हेल्ड रिसीव हो सकते हैं या पे हो सकते हैं, राइट, या फिर जो भी मनी हेल्ड आपने किया हुआ उसको बोला जाएगा मॉनिटरी आइटम। तो उन सभी मॉनिटरी आइटम्स को ऑन बैलेंस शीट डेट आप कौन सी रेट से कन्वर्ट करेंगे, क्लोजिंग रेट से,
राइट। और जब नॉन मॉनेटरी आइटम है जिसके अगेंस्ट में आपको गुड्स मिल रहा है, जिसके अगेंस्ट में आपको सर्विसेज मिल रहा है, राइट, तो ऐसे नॉन मॉनेटरी आइटम्स को या तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी करेंगे या तो फेयर वैल्यू पे कैरी करेंगे ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अगर आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी कर रहे हैं, मान लो फिक्स एसेट्स आपने 10 lakhs में परचेज किया और वही हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप उसको दिखा रहे हैं, राइट, तो 10 lakhs ही है। तो आप जिस दिन आपने परचेज़ किया, मानो 1 जुलाई 2019 को आपने परचेज़ किया हुआ है, तो 1 जुलाई 2019 के दिन का रेट ही से आप उसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर आपने फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन किया, मानो 1 दिसंबर 2019 के दिन पे, कि इसका वैल्यूएशन एक्चुअल में हो रहा है 15 lakhs रुपीज़, और आप अपनी बैलेंस शीट में भी 15 lakhs से अपना फिक्स एसेट कैरी करवाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे कन्वर्जन किस से करना है, मतलब मैंने यहाँ पे रुपीज़ में ही बात कर ली, आई एम सॉरी, 15,000 डॉलर्स, राइट, और जो परचेज था वो $10,000 में था, तो $15,000 आपका फेयर वैल्यू चेंज हो गया, राइट, और आप अपना एसेट फेयर वैल्यू पे कैरी करवाना चाहते हैं। तो जिस दिन पे आपने वैल्यूएशन किया, राइट, फेयर वैल्यू का, उस दिन का, दैट इज़ 1 दिसंबर 2019 के दिन का रेट से आप इसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बहुत आसान है, अगर आप इस चार्ट से देख ले। थोड़ा रीडिंग के लिए इतना सारा पढ़ के आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले आपको चार्ट में ले लिया। जो मॉनिटरी आइटम और नॉन मॉनिटरी में हिस्टोरिकल कॉस्ट वाले एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड फेयर वैल्यू वाले एट द डेट ऑफ वैल्यूएशन से आप कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो रिपोर्टिंग एट ईच बैलेंस शीट डेट, the treatment of foreign currency items at balance sheet date depends on whether item is monetary or non monetary। मैंने पहले ही आपको बताया, आप कौन सी चीज़ पे डिपेंड करता है, या तो वो मॉनेटरी आइटम है या तो वो नॉन मॉनेटरी है, और दूसरी कौन सी चीज़ पे, या तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी हो रहा है या तो वो फेयर वैल्यू पे हो रहा है। लेकिन वो किसके लिए है, सिर्फ नॉन मॉनेटरी के लिए। ये पॉइंट जो है वो सिर्फ नॉन मॉनेटरी आइटम्स के लिए, राइट। सो पहले हमारा ये इस बात का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ये रिपोर्टिंग एट बैलेंस शीट डेट कि ये क्या मॉनेटरी है या फिर नॉन मॉनेटरी है। अगर नॉन मॉनेटरी है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है या फिर फेयर वैल्यू पे है, राइट। आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं, इसलिए मैंने मेरा चार्ट भी इतने आसानी से बना दिया आपको। नाउ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग क्लोजिंग रेट। मॉनेटरी आइटम्स को आप कौन सी रेट से बताएंगे, क्लोजिंग रेट से। ये दोनों पॉइंट्स, दोनों शब्द को हाईलाइट कर देना। हावेवर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज क्लोजिंग रेट में नॉट रिफ्लेक्ट और with reasonable accuracy, so in such circumstances relevant monetary items should be reported in reporting currency at the amount which is likely to be realized from or required to disburse at such item at balance sheet date। अगर क्लोजिंग रेट आपको नहीं मिल रहा है या फिर वो रिजनेबली एक्यूरेट नहीं है, तो आप जिस अमाउंट से आप अपना लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे या फिर आपका अमाउंट रियलाइज होगा उस एसेट से बैलेंस शीट डेट पे, उस एक्सचेंज रेट से आप उसको कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर नॉन मॉनेटरी आइटम्स, तो अगर नॉन मॉनेटरी आइटम्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो पहले हम हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली बात कर लेते हैं। वहाँ पे एट द रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, और अगर फेयर वैल्यू और अदर वैल्यूएशन की बात करें तो रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन योर वैल्यूज वर डिटरमाइंड, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। सी कंटिंजेंट लायबिलिटी बाय यूजिंग क्लोजिंग रेट, ये मेरा एक रह गया, आप अपने चार्ट में यहाँ पे इनकर कर ले, डाल दें एक और पॉइंट, राइट, यहाँ पे एक पॉइंट डाल दें, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। डालेंगे ना, यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी दैट विल बी यूजिंग क्लोजिंग रेट, राइट। आई होप यू आर क्लियर। बीच में एक कंटिंजेंट लायबिलिटी वाला डाल दो, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, एंड यहाँ पे आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी एंड वन एक्सटेंशन एट द लास्ट देना, प्रोबेबली पॉसिबल हो तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन दे देना, कंटिंजेंट लायबिलिटी, राइट। ये होगा आपका क्लोजिंग रेट से।
ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चार्ट, स्कोप वाला फर्स्ट पार्ट ओवर, राइट। अभी रिकग्निशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस, ये जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा वो आप इनकम एंड एक्सपेंसेस इन द पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, राइट। तो ये तो बहुत आसान सी बात होगी। नाउ व्हेन द ट्रांजेक्शन इज सेटल विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, ऑल एक्सचेंज डिफरेंस अगर सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही सेटल हो गया तो वो उसी पीरियड में पीएनएल में चला जाएगा। और अगर सब्सिक्वेंट पीरियड में गया तो फिर आपको पीरियड ऑफ सेटलमेंट के दरमियान जो भी चेंज आ रहा है उसको आपको डालना होगा पीएनएल में, राइट। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड, राइट। सो ये हुआ ये। अभी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, जनरली तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चाहता है, लेकिन अदर एक ऑप्शन है कि जहाँ पे आप फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस, एफसी मितड़ा अकाउंट, ऐसे हम उसको नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, राइट। तो उसमें आप उसको आपका एक ऑप्शन दिया गया है, लेकिन सिर्फ कौन सी आइटम्स के लिए, लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम्स, रिपोर्टिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स, ऐसी आइटम्स के लिए आपको ऑप्शन है, या तो आप अपनी कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एक एफसी मित्रा अकाउंट ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आप पूरा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस पूरे मतलब ओवर द लाइफ ऑफ एसेट है उसको आप वहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे, राइट। तो ये एफसी मित्रा अकाउंट, और उसको हर साल अमोटाइज करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, लेकिन 31 मार्च 2020 के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, ये एक लिमिट है, ये भी ध्यान रखना, राइट ना। द अबव ऑप्शन इज एक्सरसाइज डिस्क्लोजर। अब अगर आपने ये ऑप्शन एफसी मितड़ा वाला एक्सरसाइज किया हुआ है या फिर ऐड टू एसेट ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया हुआ है तो आपको पूरा डिस्क्लोजर उसका देना पड़ेगा, उसका अमाउंट आपने कितना अमोटाइज किया हुआ है और कितना आगे के पीरियड में आप अनअमोटाइज अमाउंट है वो आगे के पीरियड में कैरी कर रहे हैं वो भी आपको बताना होगा, राइट। तो ये हुआ आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अभी आगे बढ़ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। हमने अभी अभी पढ़ा था वहाँ पे ऊपर के फॉरेन ऑपरेशंस का मतलब था कि आपका कोई ब्रांच है, सब्सिडियरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है। सी सब्सिडियरी मतलब कि मोर देन 51% का आपका होल्डिंग है उस एंटरप्राइज में, राइट। सी कहाँ गया हमारा डेफिनेशन, यहाँ पे ना। तो सब्सिडियरी मतलब आपका मोर देन 51% का होल्डिंग है। फिर एसोसिएट तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब मोर देन 20% का होल्डिंग है वहाँ पे भी। जॉइंट वेंचर दो मिलके एक पूरा जॉइंट वेंचर बना रहे हैं और आपका खुद का वहीं पे ब्रांच है, राइट। तो ये सभी को हम फॉरेन ऑपरेशंस बोलेंगे जो फॉरेन कंट्री में आपके चल रहे हैं। उसका क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में होता है, एक इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन एंड एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। मैंने वहाँ पे वो डेफिनेशन छोड़ दी थी क्योंकि यहाँ पे उसका डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी था। पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो इंटीग्रल से मैंने ये हम स्कोप के सेकंड पार्ट में आ गए हैं। स्टैंडर्ड का स्कोप का सेकंड पार्ट है ट्रांसलेटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। यहाँ पे ट्रांसलेटिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आपका फॉरेन ऑपरेशंस है, उनके खुद के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉरेन कंट्री के हिसाब से वहाँ पे बने होंगे। उस फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करना होगा। लेकिन वो तो मान लो आपके यूएस में एक ब्रांच है और यहाँ पे हेड ऑफिस है मुंबई में, राइट। तो आपका यहाँ का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएनआर में बना होगा और वहाँ का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स यूएस डॉलर्स में बना होगा। तो आपको वहाँ के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ट्रांसलेटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। तो उसके दो क्लासिफिकेशन है फॉरेन ऑपरेशंस के। पहला तो ये कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस एंड अनदर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे फॉरेन ऑपरेशंस के दो हिस्सों में बांटे जाते हैं। सी मैंने ये पूरा हाईलाइट भी किया है कि ये फॉरेन ऑपरेशंस है, उसको दो हिस्से में बांटा गया है, एक तो इंटीग्रल एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। अभी जब हम इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पे एंटिटी का ये सिर्फ एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ एंटिटी, राइट।
और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में वहाँ पे अपने आप से ओन एक एंटिटी आपने खड़ी की है। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं ब्रांच है जहाँ पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। और यहाँ पे ओन एंटिटी है, मतलब कि कोई आपका सब्सिडियरी है, ये राइट, या फिर कोई जॉइंट वेंचर है, वो वहाँ पे वर्क कर रहा है, ऑलरेडी उनके खुद के ऑपरेशंस है वहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपके ऑपरेशंस है वो सिर्फ वहाँ पे एक्सटेंड करवा गए हैं, राइट, एक्सटेंडेड ऑपरेशंस। और वहाँ पे तो वो खुद अपने ऑपरेशंस कर रहा है, ओन ऑपरेशंस अपनी करेंसी में, मतलब कि फॉरेन करेंसी में। उसके लिए तो वो लोकल करेंसी होगी, उसकी करेंसी में वो पूरे ऑपरेशंस किए जा रहा है जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कर रहा है, राइट। तो आपको बेसिक मैंने अंडरस्टैंडिंग दे दिया। सो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस कैरीज ऑन इट्स बिजनेस एज इफ इट वर एन एक्सटेंशन टू रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ऑपरेशंस, राइट। सिर्फ वो एक एक्सटेंशन है कि यहाँ की एक्टिविटी को वहाँ पे एक्सटेंड किया गया हुआ है। यहीं से माल जाता है लेकिन वहाँ पे बिका जाता है, प्रॉफिट यहीं पे आ जाता है, राइट, इस तरह से। लेकिन जब हम नॉन इंटीग्रल की बात करें तो वो तो अलग से वहाँ पे एक पूरा एंटिटी खड़ा कर दिया गया हुआ है जो खुद वहाँ पे कैश रखता है, वहीं पे उसके एक्सपेंस को इनकर करता है, वहीं से आप अपनी इनकम जनरेट करता है, और सभी चीज़ें वो लोकल करेंसी, मतलब कि वहाँ की फॉरेन करेंसी में पूरा सेटलमेंट हो जाता है, राइट। तो उसको बोला जाता है नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस। अभी जो भी नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस में होता क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी का उस एंटरप्राइज में, राइट। तो यहाँ की जो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो सभी एक्सचेंज डिफरेंस जो अराइज होते हैं वो डायरेक्टली पीएनएल में नहीं डाले जाते हैं। जब इन्वेस्टमेंट को आप डिस्पोज ऑफ कर देते हो, मतलब अपना जो वहाँ पे शेयर होल्डिंग है, मानो सब्सिडियरी है, अपना शेयर होल्डिंग है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को जब आप सेल ऑफ कर देते हो, डिस्पोज ऑफ कर देते हो, तब ये फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को आप देखते हो। तो तब तक तो आप उसको एक्यूमुलेट ही करते हो, राइट। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसमें एक्यूमुलेट किया जाता है, राइट। और नेट इन्वेस्टमेंट के एक्सचेंज डिफरेंस ध्यान में लिए जाते हैं, ना कि इंडिविजुअल मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी आइटम्स के, राइट। नाउ ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन इंटीग्रल ऑपरेशंस। अभी हम फॉरेन इंटीग्रल ऑपरेशंस के ट्रांसलेशन की यहाँ पे बात करते हैं। इसके लिए पहले हम चार्ट में आ जाते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। अगर वो मॉनेटरी आइटम है तो आपको क्लोजिंग रेट पे उसको करना होगा ट्रांसलेट, राइट। फिर नॉन मॉनेटरी आइटम है तो जो अगर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है तो रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, लेकिन फेयर वैल्यू पे है तो रेट ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन, राइट। आसान है, उसमें भी वही था, राइट, बाजू में। नाउ पीएनएल या फिर और कोई आइटम्स है तो रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आप एवरेज रेट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, सॉरी, यहाँ पे आप इसके जगह पे एवरेज रेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मानोगे एक्सपेंस, रेंट का एक्सपेंस है, हर मंथ आप वहाँ पे अपना फैक्ट्री का रेंट चुकवाते हैं, राइट, या फिर अपना बिजनेस का रेंट चुकवाते हैं। तो हर मंथ का रेंट है, मान लो कि $1,100 पर मंथ, राइट। तो $100 पर मंथ, तो हर मंथ ही आपका खर्चा आएगा। तो हर मंथ क्या आप उसको कैलकुलेट करेंगे, हाँ 100 इंटू अभी कितना था 50 था, फिर नेक्स्ट मंथ कितना था 100 इंटू 52 था, फिर नेक्स्ट मंथ कितना था 100 इंटू 55। ऐसे नहीं करने बैठेंगे, ये सभी एक्सचेंज रेट्स का एवरेज ले लेंगे, राइट। और वो एवरेज निकाल के उस एवरेज रेट, मानो ये 56 आया तो 56 इंटू हर मंथ 100, दैट इज़ $1,200, ये आप कर लेंगे। और इस अमाउंट से आप उसको बैलेंस शीट में अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, राइट। तो रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और एल्स यू कैन सी प्रॉफिट एवरेज रेट। और इसका जो भी डिफरेंस अराइज होता है वो पीएनएल में जाता है। आप इसको खास नोट करना, ये जो डिफरेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया जाता है, राइट। जबकि उस नॉन इंटीग्रल में थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इफ़ यू कैन सी कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, वो डेट ऑफ परचेज को देख लेना होगा। और अगर फेयर वैल्यू है तो रेट यूजिंग डेट ऑफ वैल्यूएशन। फिर इन्वेंट्री है तो जिस दिन आपने कॉस्ट इनकर किया उस दिन का। और अगर रिकवरेबल अमाउंट या फिर रियलाइजेबल वैल्यू पे अपना इन्वेंट्री आप बैलेंस शीट डेट पे वैल्यू करते हैं, तो जिस दिन आपने ये रियलाइजेबल वैल्यू डिटरमाइन किया है जनरली वो क्लोजिंग रेट ही होता है।
उस दिन का आपको रेट लेने का है, राइट। तो ये हो गया आपका फॉरेन इंटीग्रल ऑपरेशंस। अभी आगे चलते हैं नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस। फिर से हम उसको पहले चार्ट से समझ लेते हैं। अगर वो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम्स है तो क्लोजिंग रेट आसान है। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई आइटम है, यहाँ पे देखो मॉनेटरी हो नॉन मॉनेटरी हो दोनों क्लोजिंग पे है। यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट फेयर वैल्यू वाला कोई क्लासिफिकेशन नहीं बताया गया हुआ है, राइट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम्स है तो रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर एवरेज रेट, राइट। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो वो क्लोजिंग रेट पे। इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो आप उसको फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में अक्यूमुलेट करेंगे हर साल, और आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे जिस दिन आपका डिस्पोज ऑफ हो जाएगा पूरा फॉरेन ऑपरेशंस, राइट। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है। अभी हम चाहते हैं अपनी मॉड्यूल पे से ट्रांसलेशन ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। एसेट एंड लायबिलिटीज चाहे मॉनेटरी हो नॉन मॉनेटरी हो सभी क्लोजिंग रेट पे। फिर इनकम एक्सपेंसेस है तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होता है वो डिस्पोजल नहीं होता है तब तक वो ट्रांसलेशन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में एक्यूमुलेट होता जाता है, राइट। और यहाँ पे इनकम एक्सपेंस के लिए आप अपना एवरेज रेट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर गुडविल है, कैपिटल रिजर्व है, जो भी आपका फॉरेन ऑपरेशन अक्वायर करने में अराइज हुआ है उसको आप क्लोजिंग रेट से ही करेंगे। मतलब कि जो भी एसेट हो लायबिलिटी, गुडविल भी आपका एसेट बन जाएगा, कैपिटल रिजर्व आपका लायबिलिटी बन जाएगा, सभी को आप क्लोजिंग रेट से करेंगे, राइट। तो मैंने वहाँ पे इसलिए इसका अलग से लिखा नहीं है। फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो वो आप क्लोजिंग रेट से अपना ट्रांसलेट करेंगे। नाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोज नॉर्मल कंसोलिडेशन प्रोसीजर्स। अभी कंसोलिडेशन का पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो भी आपको नहीं आया है, राइट। तो ये जो स्टैंडर्ड के हिसाब से आप पूरा कंसोलिडेशन कर लेंगे, राइट। और अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकॉर्पोरेट करेंगे। वहाँ पे इंटर ग्रुप सभी एलिमिनेट किए जाते हैं, उसी तरह से पूरा प्रोसीजर जाता है, राइट। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो सभी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अभी जब हम नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस की बात करें तो उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हम मानो हमारा फिनेंशियल ईयर यहाँ पे होता है तो हम 31 मार्च को अपना बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो होता है तो दिसंबर पे अपना बैलेंस शीट उनका बन गया होता है। तो फिर हमें वहाँ पे उनके फॉरेन ऑपरेशंस के 31 मार्च तक के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे सेपरेटली, राइट। तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहता है जब आपका रिपोर्टिंग डेट अलग होता है, राइट। फिर जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है वो आपके इनकम और एक्सपेंस में नहीं दिखेंगे, राइट। और ना ही वो कंसोलिडेट होगी, राइट। वो तो सिर्फ एक्यूमुलेट होगी। और जब कंसोलिडेशन की बात आए तो अगर वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को अट्रीब्यूट होता है तो वो आप उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में एडअप करके बैलेंस शीट में दिखा देंगे, राइट। नाउ जब आप इसको सेल कर देते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडियरी है आपकी या फिर जॉइंट वेंचर है, ब्रांच है, राइट। तो उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है जब आप उसको सेल ऑफ कर देते हैं, राइट, चाहे वो आप सेल कर दे या फिर लिक्विडेट करवा दे या फिर अपना पूरा शेयर कैपिटल का रीपेमेंट कर दें या फिर आप उसको अबंडन मतलब कि स्टॉप कर दे, राइट। तो चाहे वो पार्ट में करें या फुल में करें तब आपको कैसे करना होगा, राइट। तो जो भी आपने डिविडेंड का पेमेंट किया हुआ है इनका रिटर्न या फिर प्रोपोर्शनेट शेयर्स है उन सभी के एक्सचेंज डिफरेंस को आप गेन और लॉस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करना होगा, राइट। अगर आपने डिविडेंड पेमेंट किया है इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के फॉर्म में तो उसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में उसका एक्सचेंज डिफरेंस को कंसिडर करवा लेंगे। और जो भी कैरिंग अमाउंट के राइट डाउन्स है वो भी पार्शियल डिस्पोजल के तो वो भी वहाँ पे करवा लेंगे, राइट। फिर अकॉर्डिंगली नो पार्ट ऑफ डिफर्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस इज रिकग्नाइज एट द टाइम ऑफ राइट डाउन। तो उसमें जो भी कोई भी डिफर फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस है वो राइट डाउन के वक्त उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता है, राइट। तो ये हुआ आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस की पूरी बातचीत। अभी यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं इंडिकेशंस।
कब आपको इंडिकेशन आता है कि हाँ ये फॉरेन ऑपरेशन है, लेकिन क्या वो इंटीग्रल है, नॉन इंटीग्रल है। तो नॉन इंटीग्रल के बारे में आपको कई इंडिकेटर्स दिए गए हैं कि आपको अगर ऐसा दिखे तो आप मानो कि ये फॉरेन ऑपरेशन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। तो कब आपको ऐसा मानना चाहिए, जहाँ पे पूरा कंट्रोल है या फिर सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का, राइट। जहाँ पे आपका कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट डिग्री का ऑटोनॉमी है, फिर ट्रांजेक्शन्स फॉरेन ऑपरेशन एक्टिविटी के साथ ज़्यादातर नहीं होते, वहाँ पे पूरा अलग होता है, राइट। फिर लोकल कर वहाँ पे वो फिनेंस हुआ है, वहीं पे वो पूरे ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, वहीं के लोकल बोरोइंग्स ले रहा है, जो भी कॉस्ट इनकर करा है वो वहीं पे पेमेंट होता है, वहीं पे सेटलमेंट होता है उसी करेंसी में, राइट। फिर जो सेल्स है वो ज़्यादातर उसी करेंसी में है, राइट। फिर जो कैश फ्लोज है वो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ के वहीं से अफेक्ट किए जाते हैं, राइट। फिर सेल्स प्राइसेस है वो वहाँ के लोकल कंपटीशन, मतलब कि फॉरेन करेंसी के फॉरेन कंट्री के कंपटीशन और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से है, और वहाँ पे एक एक्टिव लोकल सेल्स मार्केट है, यहाँ से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट है वहाँ पे। तो इन सभी से आपको पता चलता है कि ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, राइट। फिर उन्होंने बात की है चेंज इन क्लासिफिकेशन की। अगर आपका क्लासिफिकेशन में चेंज होता है मॉनेटरी से इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल या फिर नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। अगर इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल हो रहा है तो आप सभी डिफरेंस नॉन मॉनेटरी एसेट के जो है वो आप फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में एक्यूमुलेट करेंगे। बहुत आसान है, अगर आपने ये पढ़ लिया है तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि नॉन इंटीग्रल में आपको FCTR फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में एक्यूमुलेट करना है। तो अगर इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल में जाएंगे तो वही सेम बातचीत आएगी, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ नॉन मॉनेटरी एसेट्स की बात कर रहे हैं, वो आप ध्यान रखना, राइट। तो यहाँ पे तो आप उसको फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ले जाएंगे। और जब हम बात करते हैं नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल की, तो वो सभी एक्चुअली आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाता है, प्रायर पीरियड का कॉस्ट है, इसलिए आप उसको डिफ़र नहीं करेंगे और इनकम और एक्सपेंस को दिखा देंगे जब जो भी आपका डिस्पोजल तक नहीं हुआ है, राइट। जो भी आपका डिफ़र हुआ था एक्सचेंज डिफरेंसेस नॉन इंटीग्रल की वजह से डिस्पोजल तक हमें राह देखने की होती है, डिफ़र करना होता है, तो उन सभी को आप अभी प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, राइट। नाउ टैक्स इफेक्ट्स, अगर उसमें जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ उसमें जो भी टैक्स इफेक्ट्स है वो सभी AS 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पूरा अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, उसके हिसाब से आप उसको अकाउंट फॉर कर देंगे। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए जल्दी से ले लिया। दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं हमारे चार्ट में, आप देख सकते हैं। चेंज इन क्लासिफिकेशन इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल टू इंटीग्रल, राइट। फिर यहाँ पे मैंने ये भी कवर कर लिया है टैक्स इफेक्ट ऑन एक्सचेंज डिफरेंस AS 22 के हिसाब से आप उसको कवर कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो है वो है एक्सचेंज डिफरेंस जो भी लॉन्ग टर्म करेंसी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स है या फिर डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स है, मैंने आपको वहाँ पे बोला, तो आप या तो उसके फिक्स एसेट में एडअप कर देंगे उस कॉस्ट में, या फिर आप FC मित्रा अकाउंट फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसफर ले जाएंगे। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम था कि 31 मार्च 2020 के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, राइट। तो डेट थोड़ा याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, डेट चली गई है, राइट, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने हमारे चार्ट में से पूरा ये फर्स्ट पोर्शन हमारा कवर कर लिया, फॉरेन ऑपरेशंस वाला सेकंड पोर्शन कवर कर लिया, नॉर्मल हमारी पूरी डेफिनेशन का क्राइटेरिया भी कवर कर लिया है, राइट। ये था हमारा एंटर बाय एंटिटी, फिर फॉरेन ऑपरेशन दूसरा, ये थोड़ी सी डेफिनेशंस तीसरा, और चेंज इन क्लासिफिकेशंस या FC मित्रा वो सभी हमने कवर कर लिया, ये टैक्स इफेक्ट वाला भी। अभी जो बाकी है वो मेन है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, दो ही चीज़ें बाकी है, राइट। सो पहले हम फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पे आएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या है, एक एग्रीमेंट होता है, कुछ नहीं होता है, ये बैंक के साथ एक एग्रीमेंट कर दिया है, जो जनरली बैंक होती है इसमें, तो बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है। कौन सी चीज़ पे एग्रीमेंट होता है,
कि आप ये जो आपके पास डॉलर्स है या फिर XYZ है, जो भी फॉरेन करेंसी आपके पास है, आप उसको फ्यूचर डेट पे आप उसको कन्वर्ट करेंगे एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, राइट। आपको पता नहीं होता है, मानो आज है 1 अप्रैल 2019, राइट, और आपको पेमेंट करने का है 30 जून 2019। उस दिन कौन सी एक्सचेंज रेट होगी आपको पता नहीं है, आपको पेमेंट करना है $100, तो उस दिन कौन सा एक्सचेंज रेट होगा आपको पता नहीं है, तो आपको डर रहता है लॉस का। इन गेन भी हो सकता है नो डाउट, लेकिन रिस्क बहुत रहता है। तो मानो कि आज के दिन का एक्सचेंज रेट है 50, वहाँ पे कितना होगा पता नहीं है, तो हम एक फिक्स है 52 पे अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि हमें पेमेंट तो 52 पे ही करना होगा, चाहे उस दिन का जो भी एक्सचेंज रेट हो, राइट। तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, एग्रीमेंट टू एक्सचेंज फॉरेन करेंसी एट अ फिक्स्ड determined exchange rate on a future date. You can write this definition, right? तो ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे दो पार्ट्स होंगे। अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन पर्पस के लिए करते हैं या फिर अपने बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं, राइट। तो अगर आपने अपने ओन पर्पस के लिए एंटर किया हुआ है तो क्या, और स्पेकुलेशन पर्पस ट्रेडिंग पर्पस के लिए एंटर किया हुआ है तो क्या, वहाँ पे हम नहीं पढ़ते, यहीं पे मैंने वही टेक्स्ट का लैंग्वेज लिया हुआ है। फिर जो प्रीमियम और डिस्काउंट आता है, मैंने आपको बोला 50 वाला हमने 52 पे रिकॉर्ड करवा लिया, तो 52 और 250 था, ₹2 का वहाँ पे प्रीमियम था, राइट। तो जो भी प्रीमियम है या फिर डिस्काउंट एट द इंसेप्शन, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, तो वो जो है आपको अमोर्टाइज करना होता है ओवर द लाइफ ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेकेंडली जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट से एट द रिपोर्टिंग डेट, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करेंगे। इसका हम प्रैक्टिकल सम देखेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा। फिर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कैंसिलेशन होता है या फिर रिन्यूअल होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वो मैच्योर नहीं होता है तो उस दिन पे जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन पर्पज से था तो जो भी प्रीमियम डिस्काउंट है आप उसको इग्नोर कर देंगे, राइट। और बैलेंस शीट डेट पे उसका वैल्यूएशन करेंगे, वो एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और जब वो आपका डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, मतलब सेल ऑफ हो जाएगा, तो आप उसको फॉरवर्ड रेट जो भी फिक्स उस दिन अवेलेबल है, राइट, और जो फिक्स किया गया था उसका डिफरेंस आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, राइट। बहुत आसान है, ट्रेडिंग पर्पस या फिर ओन पर्पस, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए रिस्क हेज करने के लिए आपने लिया तो वो ओन पर्पस, बाकी ट्रेडिंग स्पेकुलेशन पर्पस, दोनों का मैंने अकाउंटिंग बता दिया। नहीं समझ में आया, आगे एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन आएगा, समझ में आ जाएगा। सिर्फ मेन पॉइंट ये है कि प्रीमियम डिस्काउंट यहाँ पे एमोटाइज होगा ओवर लाइफ ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। बाकी तो सभी एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ही हमें डालने के होते हैं। अभी यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एक छोटा सा एक टॉपिक है, आगे आएगा वो देख लेते हैं। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज किया है ड्यूरिंग रिपोर्टिंग पीरियड, उसको आप डिस्क्लोज करेंगे। जो भी आपने फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में एक्यूमुलेट किया है आप उसको भी डिस्क्लोज करेंगे। जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है आप उसको दिखाएंगे कहाँ, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। जब हम शेड्यूल 3 की बात करें, कंपनीज एक्ट की बात करें, तो उन्होंने पूरा एक फिक्टिशियस एसेट्स वाला जो पोर्शन था, जो अपने अनअमोटाइज पोर्शन था एक्सपेंडिचर का, जो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते थे, उसको फिक्टिशियस एसेट बोला जाता है। तो वो शेड्यूल 3 के हिसाब से उन्होंने वो प्रेजेंटेशन से ही निकाल दिया हुआ है, उन्होंने उसको एसेट बोला ही नहीं है, राइट। वो आपके एसेट के डेफिनेशन से ही आउट हो गया है। तो इस केस में आपको ये जो है शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाले साइड में शेयर होल्डर्स फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर आपको ये डिस्क्लोज करना रहेगा, राइट।
और जब ये आपका चेंज इन क्लासिफिकेशन था, इंटीग्रल टू नॉन इंटीग्रल टू इंटीग्रल, ऐसा केस आया हो, तब आपको डिस्क्लोजर क्या देना होगा, रीज़न ऑफ दिस चेंज, नेचर ऑफ दिस चेंज, एंड जो भी इम्पैक्ट आया है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के प्रायर पीरियड्स में और शेयर होल्डर्स फंड्स में, आपको इसको यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे मेरा पूरा चार्ट ख़त्म होता है, मेरा पूरा थियोरेटिकल पार्ट मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। आप इस चार्ट को नोट डाउन कर ले आपके लास्ट डे रिवीजन के लिए, LDR के लिए, राइट। ये आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और आगे इलस्ट्रेशन है और वहीं पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। यहाँ पे एक बात है, एक अमेंडमेंट है कि जब भी आप डिस्पोज ऑफ करते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस को, राइट, तो जो रेमिटेंस हो रहा है या फिर रिपाट्रिएशन हो रहा है वो डिस्पोजल के फॉर्म में नहीं इंक्लूड होगा, नहीं कंसिडर होगा। ये एक अमेंडमेंट है, राइट। इसको आप देख लें, ये पूरा पैराग्राफ ऊपर हमने पढ़ा वहाँ से सेम ही है, आप इसको ज़रा देख लेना। ये जो पैराग्राफ है ना, राइट, डिस्पोज ऑफ इंटरेस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है अमेंडमेंट @ ये जो पूरा पैराग्राफ है उसका एक अमेंडमेंट है @ पेज 3.101 ऑफ माई दिस PD फाइल, राइट। तो वहाँ पे मैंने अभी आगे समझा है, रिपाट्रिएशन वाला सिर्फ एक पॉइंट ऐड हुआ है, बाकी पूरा पैराग्राफ सेम है, तो वो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है और वैसे भी थियोरेटिकल पोर्शन है, राइट। सो अभी यहाँ से प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ, मेरे नेक्स्ट सेशन में मैं इनके पूरे प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस कवर कर लूँगी, राइट। सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट सेशन में हम इस पूरे स्टैंडर्ड को रिवाइज कर लेंगे फटाफट से और ये सभी इलस्ट्रेशंस को कवर कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स दी गई हुए, मैंने पूरा वो अपने चार्ट से आपको कवर करवा दिया है, राइट। और मैंने आपको बोला ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में FC मितडा या फिर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व को आप दिखाएंगे, राइट। 7 इलस्ट्रेशंस हैं, मैं वो सभी इलस्ट्रेशंस को हमारे नेक्स्ट सेशन में कवर कर लूँगी, राइट। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए अपने मॉड्यूल से और पूरा हाईलाइट कर दिए, ये पूरा चार्ट बना दे और इसको अच्छे से कवर कर लेना, राइट। थैंक यू सो मच।